Ali and Nilafar. Education is the manifestation of perfection already in a man. Let me repeat my thought. Education is the manifestation of perfection already in a man. A very good evening. Our Honorable Vice President, Shri Vinu Amipara sir, Vice Chairman of Eklavya Group of Schools, C.S. Chetandra sir, Principal of Eklavya Global School, Mr. Inna Reddy, Vice Principal of Eklavya Global School, Ms. Nisha Ganatra, Ms. Perry, daughter of our Honorable Chairman, Shri Nilesh Duleshia sir, our Chief Administrator, Mr. Digvijay Singh, my mentors, teaching and support staff, a bunch of young, excited, delighted parents, my sweethearts, lovely blossoming kindergarten kids, and the entire team of pre-primary under the leadership of Ms. Devyani Zala and Ms. Jalpa Gajera. Very good evening to all. Good evening. Yes, good evening. I can't hear you. Good evening. Good evening. Okay, so I am really speechless. मैंने बच्चों का परफॉर्मेंस देखा तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है, ताकि मैंने काफ़ी सारे अपना चाइल्डहुड मेमोरीज कलेक्ट करने में लग गई थे. So I was completely into my kids' performances. So I would like to focus very few things because मुझे पता है कि सब अपने बच्चों का परफॉर्मेंस के लिए ऑलरेडी वेट कर रहे हैं. आप लोग बोल भी चुके हैं, सो मैंने ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी. So my little child told about the vision and mission of our school. So I think teaching is the most challenging, one of the most challenging professions in the world, and it's very tough to get such talented people. बहुत रेयरली हमें जो टैलेंट्स मिलती है, और बहुत रेयरली हमें राइट पीपल विथ राइट एटीट्यूड, टीचर्स और पेरेंट्स कोई भी हो, हमें बहुत मुश्किल से मिलता है. बिकॉज अभी का कुछ 2 years का जो गैप है, मैं देख रही हूँ, इट वाज सो टफ, क्योंकि हम अभी ऑलमोस्ट वी आर सो टायर्ड, लाइक you know, our enthusiasm, our energy, all we have completely vested in the online and offline classes. It's switch on to offline and online. It was so tough for all of us. Or today's world, we are dealing with, the generation is too technologically savvy, and parents, my deep regrets, but the fact is that parents who are little impatient, who want everything happen very, very fast, and expect their children learn everything in and around the world very fast. But I just sit back and reflect myself, what is the future of education and what is the future of schooling. अभी की जो टेक्नोलॉजी है, इट्स कम्प्लीटली डोमिनेटेड. तो उसमें जो हमारा जो रिलेशनशिप है, इट्स रियली इट्स ग्रैटिफाइंग, वन कैन हैव इट. ह्यूमन कनेक्ट से हम बहुत आगे बढ़ चुका है. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट all my young parents, please sit with the kids and you just teach them, or you cannot teach them in fact, but you can just support them to get the moral values and human connect.
The two are missing very badly today's educational world and even today's society. क्योंकि हम लोग सब पढ़ रहे थे तो ऐसे माहौल बिल्कुल नहीं थे. और now you just look into the society, आपको human connect बहुत कम मिलेगा. और we really don't know who is sitting next to us. क्योंकि completely हम लोग एक मोबाइल फ़ोन में रहेंगे, नहीं तो even टीवी देखने में व्यस्त रहेंगे. और एक चीज़ all of you have to listen very carefully, बच्चे जो हम बोलते हैं वो नहीं करते हैं, जो हम करते हैं वो बच्चे करते हैं. This is the difference. बच्चे को आप 100 times बोलोगे ये करो, वो नहीं करेंगे. बट हम जो करते हैं बच्चे वो करते हैं. तो very very carefully you have to deal with this, especially for young kids. एक बार उनका behavior और उनका habit बन जाने के बाद it's very difficult to change them. वो पहले से बन जाता है. So all of you have to put some energy and time to teach them human values and human relationships. क्योंकि हमारे पास luxurious car होंगे, बंगले होंगे, and social status, job assignments, everything we have, but what about our relationships? It's all vanishing slowly. So we have to, don't forget that we are living in this world with human beings and animals and surroundings and our ecosystem and all of that. सबसे connect रहे, that would be the greatest life. मैं ये बोलना चाहूँगी. और एक दो small points हैं. और पेरेंट्स कभी कभी आई अपोलोजाइज टू से दिस कि अभी आपको अच्छा लगता है कि बच्चे को एडमिशन करा दिया एंड यू फील दैट यू टुक ए राइट डिसीजन, और उसके बाद कोई ना कोई स्मॉल प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, आपको बताते हो तो बहुत बड़ा हो जाता है. इश्यूज बहुत स्मॉल रहता है. यदि आपको स्कूल में आके उसको सोल्यूशन लेनी होती है, दैट्स इट. बट उसको इतना बड़ा करते हैं. तो वहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी, आपका डिसीजन बहुत कमज़ोर तो नहीं हुआ है, बट वंस अपॉन ए टाइम आप इतना ट्रस्ट करके बच्चों को हमारे हाथ में दे दिया है, तो देन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. वी आर देयर टू कम्प्लीटली टेक केयर ऑफ देम, देयर इमोशंस एंड देयर गाइडेंस एंड एवरीथिंग. वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ देम. और I would like to give a small example. हम सब ये believe करते हैं कि the entire universe is created by God. But कितने लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चे को हम मंदिर छोड़ आए और मस्जिद में छोड़ के आए और चर्च में छोड़ के आए और गुरुद्वारे में छोड़ के आए? कोई नहीं करेंगे ये काम, क्योंकि everybody knows that God is powerful and He is a creator of the entire universe. आप वो काम नहीं कर सकते. और आपके बच्चे यदि रिलेटिव्स का घर जाते हैं और ग्रानी के घर जाते हैं और नाना के घर जाते हैं, आप कितनी बार फ़ोन करते हैं उनको? बच्चे खाना खाए, बच्चे सोए, बच्चे कुछ रो तो नहीं रहे, 101 phone calls. But when our kids come to the school और आपको इतनी रिलैक्स फील होती है, बच्चे स्कूल गए हैं तो 7 to 1 o'clock आप कितना रिलैक्स रहते हो? आपको ना बच्चे की याद आती है ना स्कूल की याद आती है. यू आर रिलैक्स्ड. आप अपना काम करते रहेंगे. आपको टीवी देखना है तो आप टीवी देखेंगे. आपका फोकस कंप्लीटली व्हाट यू आर डूइंग. बट when your kids are away from the school, आपको जितनी चिंता लगती है वो हम बच्चे स्कूल में रहते हैं तो आपको कोई भी चिंता नहीं होती है. सो जो ट्रस्ट आप हमारे ऊपर रखा है वो बनी रहे. एंड इन फ्यूचर ऑल्सो यू हैव एनी प्रॉब्लम्स और एनीथिंग यू हैव, सो स्कूल इज़ योर्स. इट्स लाइक ए टेम्पल एंड यू कैन कम एंड मीट अस. कभी कभी पेरेंट्स का ये भी व्हाट यू से कि कंप्लेंट होती है कि प्रिंसिपल से मिलने नहीं दे रहा है और ट्रस्टी से मिलने नहीं दे रहा है. इट इज़ नथिंग लाइक दैट. प्लीज़ टेक अ प्रेयर अपॉइंटमेंट एंड यू कैन मीट अस
and you can, whatever the problem you have, you can sit with us and solve us. So I am not going to, stretch my points. This evening is yours. Enjoy. Thank you so much for giving an opportunity, and thank you very much. Enjoy. Thank you. Move to the next performance. Head, shoulder, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Shanvi, what are you doing on the stage? Ma'am, please come, join me. Head, shoulder, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Shanvi, stop dancing here. We have forgotten something. We have a dance group who have landed for their special performance, especially for the graduation ceremony of Kids Kingdom. Ma'am, where are they? They are here with us. Let's put your hands together for the dance group of Senior KG. Performance. A huge round of applause for all cute dancers. ये बच्चे भी ना बड़ी समझदार होते हैं। इन्हें बड़ी चीजें छोटी और छोटी चीजें बड़ी लगती है। ऐसे ही हमारे दो नन्हे मुन्ने बच्चे आपके सामने आ रहे हैं अपने दिल की बात आपसे शेयर करने के लिए। With a big round of applause, please welcome our little kids Kakkad Hitans and Bhat Vaishnavi from Senior KG. Principal ma'am, administrator at DJ sir, all the mummies, daddies, nana nani, dada dadi, bhaiya didi, golu choti, all the ladies or gentlemen, a wonderful good evening to you all. My name is Shitash Kakkad. My name is Vaishnavi Rabhat. Today we are here to share with you all special moments that we have spent in Kids Kingdom in last 3 years. Our teachers not only taught us phonics, writings, letters and numbers, but also they read beautiful story for us, sang and taught us songs and rhymes. They taught us to be kind and loving towards everyone. जब मैं पहली बार स्कूल आया तब मुझे टिफिन खोलना भी नहीं आता था। मेरे टीचर ने मुझे टिफिन ओपन करना सिखाया। एक दिन मैं टिफिन में जाकर लेकर आई थी तो मेरी फ्रेंड उससे कुछ कर रही थी तब मैम ने बताया इसे इंग्लिश में गोवा कहते हैं। तब बातों बातों में इंग्लिश सिखा दिया। I would like to thank all the teachers especially for making us what we are today.
टीचर ने हमको खेलते खिलाते शेप सिखा दिए। ऑनलाइन में भी क्रिएटिव वेस्ट सिखाया, सोलर सिस्टम, वाटर साइकिल और हेल्दी फूड का इम्पोर्टेंस सिखाया। ऑनलाइन क्लासेस टीचर भले ही पहली बार रहते, पर उसकी मेहनत से हमें शिक्षा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। I would want to extend to thank my thanks to Ayamasi who had been caring and supporting at all times. I am not going to forget unconditional love and care given to us at His kingdom by each and every one. Thank you everyone. सेरेमनी को और यादगार बनाने के लिए आगे चलते हैं। ओके सर, दैट्स ग्रेट आइडिया, मगर कैसे? बताता हूँ। आज के दिन हम उस शख्सियत को के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो कि ना सिर्फ लॉयल है इंस्टीट्यूशन से, हार्ड वर्किंग भी है, इंस्टीट्यूशन के लिए डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन की मिसाल है और जिसके लिए बच्चे और उनकी एजुकेशन ही उनकी प्रायोरिटी है। सर कहीं आप हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम की तो बात नहीं कर रहे हैं ना? क्योंकि आप जो सारी क्वालिटीज़ बता रहे हैं वो सारी तो उन्हीं में है, और उससे भी बढ़कर एक बहुत ही अच्छे लीडर और हमारे लिए आइडल रहे हैं हमारे प्रिंसिपल मैम। हर कदम पर हमें उनसे प्रेरणा ही मिलती रही है। Absolutely correct. As quoted by Swami Vivekananda, there is no impossible word in the dictionary for those who lead. No matter how big a challenge, they can be resolved with a strong intention and resolution. So, our beloved principal ma'am has lived up to these words of this quote, each and every word. तो चलो आज के इस शुभ अवसर पर हम हमारे एकलव्य फैमिली की ओर से हमारे प्रिंसिपल मैडम के लिए इस पल को यादगार बनाएं। Sure. और इसके लिए I would request our beloved principal ma'am, Professor Anjali Giri ma'am, to please come on the stage for this felicitation. Ma'am, please. ये वो शख्सियत है जिनकी प्रेरणा के पुष्प हमारे एकलव्य के स्टूडेंट्स के पर अविरत बरसते रहे हैं। प्लीज गिव देम बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। प्रिंसिपल मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच मैम। And to give this honor, I would like to request our Board of Trustee, Vice President, Mr. Vinubhai Amipara sir, our Vice Chairman, C.S. Chetan Shah sir, our beloved Perry ma'am, and all to please come up on the stage. Inna Reddy sir, Principal of Eklavya Global School, please come on the stage. सम्मानित करते हैं, let's felicitate ma'am for the work that she has done. सम्मानित करें और साथ में सम्मान पत्र भी दें। Sure, क्यों नहीं? I'll just read out in a quick go that what we have mentioned and what we have considered our ma'am for. Great leaders don't set out to be a leader. They set out to make a difference. It's never about the role, always about the goal. On behalf of Board of Trustees and entire Eklavya family, we would like to thank you for bringing a remarkable upliftment to the school academics during your leadership. We would like to take this opportunity to appreciate you for your tremendous hard work and countless efforts which has taken our school academics to next level.
Your clarity, your deep insight in children's learning methodology has been proved much effective during the hard times of pandemic, especially during COVID. Your work of excellence in designing the curriculum, your philosophy of burdenless studies for the children, your countless hours that you had given to this institution for the upliftment of the school is remarkable, invaluable and priceless, ma'am. You are true inspiration for the people and employees in terms of loyalty, sincerity, dedication and discipline. Must say you are our rock of Gibraltar. Your purity of heart touches the soul and mind of entire team and motivates them to work towards the betterment of the school and its vision. The entire Eklavya family thanks and appreciates your tireless efforts and sincere work. We wish that you proceed with your journey of further academic excellence here at Eklavya, and we look forward to more such success stories, which we know you are much more capable of, ma'am. Thank you, Eklavya family, to our respected principal, ma'am. Please, ma'am. I don't know what to say. I am really speechless. I have not done a very remarkable thing, and I just thought this is my responsibility towards the society and towards the management. I just have done the justification for that, and I would like to thank my management and my entire team. I don't know what to say, and especially I would like to take Vinu sirs and Chetan sirs and Neelay sir's name. And Chetan sir is always with us in the school, and he is also one of the inspiration whatever I am doing, and he support me a lot. And my team members, really they support, and my young lovely children, that is real inspiration for me, and I live for them, and my energy and my time and everything I dedicated to my children. Thank you so much for this thing, and really heartful thanks to everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. Respected Vice President Shri Vinubhai Amipara. Nilesh Bhai is not here, our beloved Chairman and President of entire Eklavya and Noble Group of Institution. He has sent his best wishes for the program. Respected Principal Ma'am, dear Perry, Principal of Eklavya Global, Inna Reddy Sir, Vice Principal Nisha Madam, Digvijay Sir, all teachers, parents and their kids. बच्चे अभी राह देख रहे, उनकी सेरेमनी के लिए पेरेंट्स भी बहुत ही बेताब है, तो ज़्यादा मैं बीच में टाइम नहीं लेना चाहूँगा, बट सिर्फ दो बातें. आज का ये फंक्शन पेंडेमिक के बाद पहला फंक्शन है. सो ये जो एकलव्य का प्रांगण है वो ऐसे फंक्शन से मतलब साल में 10-12 बार महकता रहता था. अब मार्च 20 के बाद पहली बार मई में 22 में ये फंक्शन हो रहा है. सो हमें भी एक बहुत ही अच्छी एनर्जी लग रही है. बहुत ही ये स्कूल, ये बिल्डिंग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बच्चों के बिना कुछ नहीं है. इसका मतलब रियलाइज़ हमें हर वेकेशन में होता था, लेकिन वो टेम्पररी होता था. 30 दिन के बाद बच्चे आ जाते थे, फिर से चहल पहल, फिर से वही रौनक. लेकिन इस बार ये वक्त बहुत ही लंबा था, लेकिन कोई भी बुरा वक्त हो कट जाता है. इसी तरह से ये वक्त भी कट गया. मैडम ने बहुत सारी बातें बोली है. मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि अब बच्चे जो आ रहे हैं वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आएंगे. हमारी एक बच्ची ने पूरा विज़न मिशन, आपने देखा होगा, हर एक साल के बाद, हर दूसरे साल के बाद एक चीज़ हम इंट्रोड्यूस करते गए. तो
जब भी हम कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे थॉट्स होते हैं। वो आपके पास आता है तब उसके पहले बहुत सारे थॉट्स होते हैं। जैसे कि लीड का करिकुलम आया है, तो लीड के करिकुलम के लिए हम ये पेंडेमिक के टाइम में हमने रिसर्च किया था, तो ये 2 साल के बाद आपके सामने रखा है। सो ऑलवेज जो भी चीज़ें आएगी, जो वर्कबुक आई है, जो मटेरियल आया है, वो बहुत ही टाइम के बाद आपके पास आता है। तो एक एक चीज़ में हम लोग इतना, हमारी जो टीम है वो इतना अच्छा वर्क कर रही है। स्पेशली जैसे आप लोग शायद मिलना कम हुआ होगा, इसलिए आप को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रिंसिपल मैडम है अंजलि गिरी मैडम, सी वॉज इन बेंगलोर में, बेंगलोर की मेट्रो की लाइफ छोड़ के यहाँ पे आए हो, और यहाँ पे आने के बाद उनको ये मतलब बच्चे इतना उनको ये लगा हो गया है कि उनको ये लगता है कि जो मेरे अंदर है, उन्होंने कैम्ब्रिज वगैरह बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में IB में काम किया है, IGCSE और IB जैसे इंस्टीट्यूट में काम किया है। जैन इंटरनेशनल, अगर आप वेबसाइट पे भी गूगल में जाके सर्च करेंगे, इंडिया की जो टॉप 10 रेजिडेंशियल स्कूल है वो उस स्कूल में उन्होंने काम किया है। तो उसके बाद यहाँ पे आना ये भी एक बहुत ही बड़ी बात होती है, और लेकिन यहाँ पे वो है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए और इंस्टीट्यूशन को प्रॉस्पर करने के लिए। तो इसीलिए आज ये सरप्राइज़ एक अप्रिशिएशन हमने प्लान किया था उनके लिए। और आज ईस्टर है तो उनके लिए भी बहुत ही बड़ा त्यौहार है, तो मेरे हिसाब से आज ये ईस्टर की गिफ्ट हम सब एकलव्यंस की ओर से हम मैडम को ये देना चाहेंगे। और मैं फिर से ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सबको ये प्रोग्राम में आप आने के लिए, और ये प्रोग्राम अब हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं मेरे कलीग हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री विनू भाई अमीपरा को यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहूँगा और उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो 2 शब्द इस फंक्शन के लिए कहे, और उसके बाद हम फंक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। श्री विनू भाई। तो ચેતનભાઈ છે નહીં, જાજુ બધું બોલવું પડે એવું છે। ત્યાં બેઠા બેઠા કેટલી બધી ઉર્મિઓ છોકરાઓને જઈને તે થતી હતી। આપણું બાળપણ તો યાદ આવતું હતું, પરંતુ અત્યારનું જે કલ્ચર છે એ કેટલું ફાસ્ટ જઈ રહ્યું છે એનો વિચાર કરતો હતો કે 2 પ્રકારના લોકો હોય છે, આમ તો નંબર ઓફ પ્રકારના લોકો હોય છે। એટલે હું ટીચર્સને એવું કહેવા માગતો હતો કે ભાઈ આ બધા બાળકોને અહીંયા પ્લે હાઉસ કર્યું, સિનિયર કેજી કરી, હાયર કેજી કરી, 3 વર્ષ કરીને પછી તમે ગ્રેજ્યુએશન પ્રોગ્રામ કર્યો છે। એટલે સૌપ્રથમ તો હું વેલકમ કરીશ ગ્રેજ્યુએશન સેરેમનીમાં ઉપસ્થિત સૌ ટ્રસ્ટીઓ, પ્રિન્સિપાલ શ્રી, અમારા યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર સોની સાહેબ શ્રી, આ પેરેન્ટ્સ, બાળકો, બધા ટીચર્સ, સ્ટાફ, આપ સૌને ગ્રેજ્યુએશન સેરેમનીમાં વેલકમ કરું છું। સાથે સાથે વાત એ કરતો હતો કે હું ટીચર્સને એવું કહેવા માગતો હતો કે આટલા બધા બાળકો છે, તમે 3 વર્ષ પૂરા કર્યા છે તો ગ્રેજ્યુએશન, સામાન્ય રીતે ગ્રેજ્યુએશન એટલે કેવડો મોટો શબ્દ છે, પરંતુ અત્યારથી તમે એના મગજમાં નાખો છે કે યુ આર એ ગ્રેજ્યુએશન। તો 3 વર્ષની અંદર તમે જે બાળકોને આપો છો, ખરેખર અહીંયા દેખાય છે ટીચર્સ કેટલી મહેનત લેતા હશે। અને મને આ તકે યાદ કરવાનું મન થાય છે આપણા પ્રિન્સિપાલ સક્સેના સાહેબ। આજે આ સ્કૂલ એક એવા એક્સપિરિયન્સ પ્રિન્સિપાલને લઈ આવે છે, એમાં સક્સેના સાહેબથી લઈને ખાસ કરીને અત્યારે અંજલિ મેડમ જે રીતે કામ કરી રહ્યા છે, લેટેસ્ટ જે અત્યારે ભવિષ્યની અંદર બાળકોને શું જોઈએ છે, ઇન્ટરનેશનલ શું કામ થઈ રહ્યું છે, એના ઉપર તમે જે લોકો કામ કરો છો ને એમને એ સ્ટેજ ઉપર દેખાય છે। ત્યારે એજ એ ટ્રસ્ટી અને આ સ્કૂલ કરવાનો જે અમને આનંદ થાય છે કે જૂનાગઢની અંદર આજે બાળકોને સામાન્ય શિક્ષણ મળતું હોય એને તમે હાઈ ગ્રેડ સુધી, ઇન્ટરનેશનલ લઈ જાવ સુધીના જે તમે અત્યારથી પ્રયત્ન કરો છો, એટલે આ બધા ટીચર્સ અને પ્રિન્સિપાલનો ખાસ અને દિગ્વિજયસિંહ આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। એટલે વાત એ પણ હું કહેતો હતો કે એટલું 2 મિનિટમાં પૂરું થયું એટલા માટે નહોતું કે બાળકો એટલી બધું એક આમ એમ ક્યુટ એમ થાય, ઊભા થઈને એમ થાય કિસ કરી આવીએ, એટલા બધા સરસ પરફોર્મન્સ કરતા હતા। એટલે અચ્છા, બીજું કે બાળકો છે આની અંદર જુદી જુદી પ્રકારની બધા કુદરતી રીતે પોતાની શક્તિઓ લઈને આવતા હોય છે। ત્યારે ટીચર્સને એક વિનંતી કરીશ કે આ બધા બાળકોની તમે એવી એક યાદી બનાવો કે કોઈને નૃત્યમાં રસ છે, કોઈને સંગીતમાં રસ છે, કોઈને ભણવામાં રસ છે, કોઈને
બીજી કોઈ કેટલી બધી પ્રવૃત્તિઓ અત્યારે બધી છે. એટલે બધા પાસે એક સરખી જ અત્યારે સામાન્ય રીતે મા બાપ શું કરે છે કે ડૉક્ટર, એન્જિનિયર અથવા તો બસ હાઈ સોસાયટીના જે હાઈ ઇમ્પ્રેશનવાળા જે માણસો છે એવું જ બનાવવા માગતા હોય છે. પરંતુ હું એમ માનું છું કે બિસ્મિલ્લા ખાન છે એ 2 ધોરણ ભણેલ હતા, પણ છતાં ઇન્ટરનેશનલ હસ્તી હતા, રાષ્ટ્રપતિને પણ સાંભળવા પડે. એટલે દરેક કુદરત જે અહીંયા બાળક મોકલે છે, આ ગુલાબના બગીચાના અંદરના ફૂલો છે, આ ફૂલોની અંદર દરેક પ્રકારે કુદરતે સુગંધ નાખી છે. તો એને ખીલવવા માટે, એને જુદા જુદા પ્લેટફોર્મ માટે તમે એવું કંઈક બતાવો કે જેથી કરીને પેરેન્ટ્સ સુધી વાત પહોંચે કે તમારા બાળકને એન્જિનિયરની અપેક્ષા ન રાખતા, ડૉક્ટરની અપેક્ષા ન રાખતા આ સારામાં સારો સંગીતમાં આગળ વધી શકે એમ છે, કુસ્તીમાં. એટલે નંબર્સ ઓફ અત્યારે તો ફિલ્ડ ખુલ્લા છે. એટલે આપ આનું થોડું માર્કિંગ કરી અને પેરેન્ટ્સની અંદર દેખાદેખી બહુ હોય. ઓલાને ABCD આવડી ગઈ, મારા દીકરાને ABCD આવડતી નથી. એકચ્યુઅલી આપણે સ્કૂલ ચાલુ કરી ને ત્યારે ભાર વગરનું ભણતર ચાલુ કર્યું હતું. 3 વર્ષ તો માંડ પેરેન્ટ્સોએ એમના ચાલુ રહેવા દીધું. 3 વર્ષમાં ભારવાળા કરી દીધા. નહીં તો ફર્સ્ટ એવું હતું અને અમે એવું માનતા હતા કે છોકરા પ્લે હાઉસ, સિનિયર કેજી ને હાયર કેજી સુધી મોજ મજા કરે, રમે અને હેલ્ધી થાય અને મેન્ટલી કોઈ પણ પોતાની પાસે ચેલેન્જ આવે, આ ચેલેન્જ સ્વીકારતા થાય. એકડા પકડા તો શીખવાડશું, ABCD તો શીખવાડશું. પરંતુ આ પેરેન્ટ્સો 3 વર્ષ થયા ને તો રિઝલ્ટો લઈને આવવા માંડ્યા. પેલી સ્કૂલમાં તો એ કે મારા એના છોકરાને ABCD આવડે, આપણા છોકરાને આવડતું નથી, ઓને 60% આવ્યા, 80% આવ્યા, આવી બધી વાતો લઈને આવ્યા. કંટાળીને અમારે પાછા દફતર ચાલુ કરવા પડ્યા. એટલે પેરેન્ટ્સને પણ અમારે વિનંતી છે કે એટલા બધા બહુ ફાસ્ટ ઉતાવળિયા ન થાવ. એ કુદરતે એને અહીં આવ્યા છે તો કાંઈક ને કાંઈક નિર્માણ કરવાના છે. તમે બધા ભાગ્યશાળી પેરેન્ટ્સ છો, તમારે ત્યાં જે જન્મ લીધો છે એ તો કાંઈક ને કાંઈક બનવા જ આવ્યા છે. એટલે બહુ ઉતાવળ કર્યા રાખ્યા વગર અમારા ટીચર્સ ઉપર, સ્કૂલ ઉપર ભરોસો રાખો અને નિરાતે મસ્તીથી તમે જીવો અને બાળકોને એનું જીવન જીવવા દો. હા, જવાબદારી હોય જેમ ટીચરે કીધું હતું એમ કે તમે એની સાથેનું ટાઈમ પાસ કરો, ટાઈમ આપો, એની સાથે હ્યુમેનિટીનો, ફેમિલીનો, મેનર્સનો. આવતું આ બાળક છે, આપણા દેશનું ભવિષ્ય છે. એટલે આ બધા જે આપણા અગત્યના જે પોઈન્ટ છે એને આપણે ચોક્કસ ધ્યાન દઈએ. પણ ટીચર્સ ઉપર, ટીચર્સ છે ને એટલી બધી ચિંતા કરતા હોય છે. આપણે કેટલા બધા ધબ્બા મારી લઈએ છીએ અને ટીચર્સ જરાક કાંઈક કહી દે તો આપણે ખીજાઈ જાય. મારા છોકરાને કીધું, અરે ભાઈ તારા છોકરાને સુધારવા માટે કીધું છે. એટલે એક આઈને 30-40 બેઠા હોય, એ 30-40માંથી બધાને બધા જુદા જુદા ગ્રહોમાં આવેલા હોય. એટલે એ એનું કામ કરતા હોય. એટલે તમે એની પર એને મજા લેવા દો ને. બાળકોને મજા, એને બાંધવાની મજા હોય છે, એકબીજાને થપ્પડ મારવાની મજા હોય, કંઈથી પડવાની મજા હોય. આજે હું બપોરે હતો, મેં કીધું આપણા બાપ દાદાઓ 5-5 મણની ગુણ લઈ અને નીકળી જતા હતા. અત્યારે તો 5 કિલો લઈને નીકળે. અરે મારા છોકરાને આટલું બધું દફતર હોય. આવી બધી વાતોમાં આપણે સેન્ટિમેન્ટમાં એટલા બધા બાળકોને શું કરવા માગે છે. એટલે પેરેન્ટ્સ પર થોડાક હળવા હાલો અને સ્કૂલ જે સમય પ્રમાણે તાલ મેળવે છે, તમારા બાળકોને ઇન્ટરનેશનલ કક્ષા સુધી જેને લઈ જવાય. એટલે આપ સૌ અમારે સ્કૂલ અને એના મેનેજમેન્ટ ઉપર ભરોસો રાખી આપના બાળકોને. બીજી વાત કહું કે અત્યારે અમે ઘણી બધી કોલેજોમાં જઈએ છીએ તો અહીંયા અત્યારે જે નાના નાના બાળકોને જે ટીચર્સ લઈને આવે છે ને એ સ્ટેજ ફિયર વગરના જોઈએ છે. એ જે કોલેજોમાં, બીજી કોલેજોમાં જાય છે તો ત્યાં ખરેખર એકલવ્ય તરીકે લીડરશિપ લે છે. કેટલી બધી જગ્યાએ મેં કોલેજમાં હું ગયો છું, ત્યાં અહીંના સ્ટુડન્ટો એને સ્ટેજ ફિયર નથી. ગેમ્સમાં, પછી વેશભૂષામાં એટલા બધા કોલેજમાં છવાઈ જાય છે. એવા નંબર ઓફ આપણા સ્ટુડન્ટોને મેં જોયા છે. એટલે આપના બાળકોને અમે જરા પણ અહીં કચાશ રહેવા નહીં દઈએ. ભરોસો રાખો અને તમે માત્ર એ ભણીને આવે ત્યારે તમારો મા બાપ તરીકે એને પ્રેમ આપતા રહ્યો એટલે આપણે બધું કામ થઈ જશે. તો ફરીથી આપ સૌ અહીંયા આવ્યા, આ સરસ પ્રોગ્રામ માંડ્યો અને હજી માણવાનો છે. આપના સૌ બાળકોને ગ્રેજ્યુએટ તરીકેની આપણે ડિગ્રી આપવાની છે, એમાં આપ સૌ પધાર્યા છો એટલે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને ફરીથી આપ સૌ આ પ્રોગ્રામને આગળ વધારો. થેન્ક યુ વેરી મચ. Am I audible? Am I audible? Yes. But you know, मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि everyone is just like, अब सबने लंच किया था? Yes or no? Louder? So इतनी सारी परफॉर्मेंस हुई तो just think like you all are performing और जो हमारे ऑडियंस है they are not clapping, they are not using their energy जो उन्होंने लंच किया था. So how would you feel? Bad? Bad? पेरेंट्स, हम सो रहे हैं. अच्छा चलो एक एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटी सी. हैंड्स अप. ये हम क्लास में बच्चों को बहुत करवाते हैं. ओके, अप, ऑन योर हेड, शोल्डर, क्लैप,
हेड हेड अप. अच्छा, टच योर नीज. जंप करवाऊं सबके पास? एक बार छोटा सा. ठीक है, चलो हो रहा है यार. इसमें ऐसा है, देखो कि अभी मेरे बच्चे आने वाले हैं पीछे से. सो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन to show their energy, to encourage our students, to clap for them, to motivate them as much as you can. So will we do that? Starting में मैंने बोला था मेरे को बच्चों की तरह जोर से हाँ चाहिए. So are we ready for that, parents? Yes or no? Perfect. So today is the day when our students of senior KG are graduating to the first standard. Now, there are our kids. I would like to welcome our first class of senior KG Azad English medium, along with their teachers leaded by Nilofer ma'am and Komal ma'am. Parents, I want each and every one of you to clap for them and motivate our students. Show your glorious they all are looking. Parents, I want a constant clapping. तालियां रुकनी नहीं चाहिए बच्चों के लिए. Please welcome our little munchkins of senior KG Bhagat.
Dignity sir, please join us on the stage and also to please give the certificate to our kids. You guys are the mentor of this scheme. देंगे आगे प्लीज आप ओके, हम सबको पर्टिकुलरली टाइम देने वाले हैं, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू हैव योर सीट्स। पेरेंट्स आई रिक्वेस्ट अगेन, हम आप लोगों को फोटो सेशन के लिए टाइम देंगे पीछे से, सो प्लीज टेक योर सीट्स फॉर नाउ। बच्चों की फोटो क्लिक करने के लिए आपको टाइम देंगे आगे। अभी परफॉर्मेंस होनी बाकी है, सो अभी सब अरेंज हो जाए तब आपकी प्लीज सिट ऑन योर प्लेस। जी हम जैसे क्लास में बच्चों को बोलते हैं कि धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए, यू नीड टू कम इन अ लाइन, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कि मैं 50 मार्क्स देने वाली हूँ तो फिर नाव के बैठ गई। वाह, ओके, नाउ एवरीवन इज सेटल्ड, गुड। पहले बोलते थे मैं 50 का 100 मार्क्स दे देती आप लोगों को ऐसे ही। ओके नाउ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कूल लाइफ को अभी भी याद करते हैं। एक बार हाथ खड़ा कर लीजिए। अब इसमें से इतने कितने पेरेंट्स हैं जो अपनी स्कूल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते थे और बैक बेंचर्स थे? तो अभी नेक्स्ट टाइम हमारी कभी भी स्कूल से कंप्लेन आए ना तो आप सबको बोलने का हक नहीं है, क्योंकि आप सबने भी अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली है। आज मैं आपको स्कूल लाइफ के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो स्कूल लाइफ जो स्टार्टिंग में हम छोटे होते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है, हमको वो बर्डनसम लगती है, हमको ऐसा लगता है कि ये स्कूल लाइफ हमारे लिए बोझ है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमको टीचर्स का साथ मिलता है, दोस्तों का साथ मिलता है, तो ये स्कूल लाइफ खुशी की लाइफ में चेंज हो जाती है, हमें इसमें मज़ा आने लगता है। तो उसमें क्या, हम जब छोटे थे तब हम जैसे बाहर चले गए या फिर हम किधर घूमने चले गए या फिर बीमार हो गए तो अटेंडेंस शीट में एब्सेंट आती थी, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 9th-10th में ना एक दिन पहले ना अपने दोस्त को फ़ोन करेंगे, अरे भाई तू स्कूल पे जा रहा है? और वो बोलेगा नहीं भाई मैं तो स्कूल पे नहीं जा रहा हूँ, तो वो भी स्कूल पे नहीं जाएगा। और साल के आखिरी में पता चलता है कि दोनों का अटेंडेंस शीट एकदम ट्विंस बन गया है, मतलब यहाँ पर एब्सेंट तो यहाँ पर भी एब्सेंट, यहाँ पर प्रेजेंट तो यहाँ पर भी प्रेजेंट, एकदम सेम टू सेम। अभी एक दिन हुआ ऐसा, मेरा और मेरे दोस्त के बीच में कुछ मिसकैलकुलेशन हो गया। अब उसके कारण मैं तो स्कूल पे चला गया लेकिन मेरा दोस्त तो स्कूल पे आया ही नहीं। और वहाँ पर जाकर मैंने जब देखा कि मेरा दोस्त तो स्कूल पे आया ही नहीं है, तो जितना कोकिला को खाली कुकर देखकर सदमा नहीं लगा था, मुझे उससे भी ज़्यादा सदमा लग गया। लेकिन फिर मैंने अपने दिल को थामा
और मैं सीधा क्लासरूम में गया और फिर मैं लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गया। लेकिन टीचर आए, टीचर ने अटेंडेंस स्टार्ट कर दी, अटेंडेंस खत्म भी हो गई, लेकिन मेरा नाम तो आया ही नहीं। अभी मैंने टीचर को पूछा कि मेरा नाम तो आया ही नहीं, तो टीचर ने बोला तेरा दोस्त नहीं आया था तो मैंने तेरे में भी एब्सेंट लगा दिया। मतलब क्या चल रहा है यार, मतलब दोस्त भी सिटीजनशिप की तरह बन गया, उसके बिना तो गिनती ही नहीं होती है। और फिर अभी आता है एग्जाम का दिन। अब एग्जाम के दिन एक दिन पहले फ़ोन करेंगे कि अरे भाई कुछ प्रिपरेशन किया, तो वो बोलेगा नहीं भाई मैंने तो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया। तो वो बोलता है हाँ भाई मैंने भी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है, वैसे भी वन शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड अवर फ्यूचर, ऐसे बोलकर बात को टाल देंगे। और फिर आता है रिजल्ट का दिन, और मैं और मेरा दोस्त सब चीज़ में सेम थे। अब रिजल्ट के दिन भी मेरा और मेरा दोस्त का एकदम सेम टू सेम रिजल्ट आया। मेरा दोस्त हुआ फेल, और फिर आप सबको पता ही आगे क्या हुआ होगा। और फिर क्लास के अंदर टॉपर्स और बैक बेंचर्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा राइवलरी होती थी। जो टॉपर होते हैं वो ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए लगे हुए, और बैक बेंचर्स कम मार्क्स लाने के लिए लगे हुए। वो लोग के ग्रुप में किसी को भी थोड़े से ज़्यादा मार्क्स आ गए तो बोल देते हैं भाई तू ग्रुप से बाहर है, तेरा क्वालिफिकेशन हमारे लेवल का है ही नहीं, वैसे बोलकर उसको ग्रुप से बाहर निकाल देते। और फिर टॉपर्स के पास होंगी सारी बैग भर के बुक, उसके पास होगा डाइजेस्ट, उसके पास होगी गाला, उसके पास होगी बाजू वाले की बुक, उसके पास होगा पूरा बुक स्टोर। लेकिन हम बैक बेंचर्स, हमारे पास तो सिर्फ एक ही बुक होती है, और वो भी पूरे साल में सिर्फ आधी भरी हुई होती है। हम कहाँ से गुजराती का 100 विस्तार लिखते लिखते साइन थीटा कॉन्स थीटा में घुस गए, या फिर साइन थीटा कॉन्स थीटा लिखते लिखते मिंडा चोकली खेलने लगे, पता ही नहीं होता है कहाँ से कहाँ पहुँच गए, किसी को भी पता नहीं होता है। और एक रिजल्ट का दिन आता है। अब रिजल्ट के दिन टॉपर्स के 4 मार्क्स कम आ गए तो टीचर के ऊपर चढ़ जाएगा कि आपने मेरे 4 मार्क्स काटे कहाँ पर, और हम वहाँ पीछे की बेंच पर बैठ के सोच रहे मेरे 4 मार्क्स आए कहाँ पर भाई, क्योंकि हमने तो कुछ लिखा ही नहीं था। और फिर एक दिन जैसे कि हमें टीचर ने पकड़ लिया, हम कुछ मस्ती कर रहे थे और हमें टीचर ने पकड़ लिया, तो हम इतने मासूम बन जाएंगे ना कि जैसे अभी गंगा जल में हम स्नान करके आए हैं। मतलब हमारे मुंह से पता ही नहीं चलेगा कि इसने कुछ शैतानी की है। और फिर एग्जाम के दिन हम सब गए, क्वेश्चन पेपर देखा, और फिर पता चल गया कि कुछ आ नहीं रहा है, और फिर स्टार्ट कर दिया वही ओम नमः शिवाय लिखना। अब मैं बाजू में देख रहा हूँ, मेरा दोस्त इसका नाम था भोली, वो भी ओम नमः शिवाय लिख रहा है, उसमें अभी ओम का स्पेलिंग गलत लिख रहा है। मैंने बोला गया भाई, इंडिया का फ्यूचर तो ख़त्म हो गया। और फिर ऐसी बातों के साथ स्कूल लाइफ आगे बढ़ती गई। तो मैंने जैसे बोला मेरा दोस्त था भोली, अब ये ना सबसे अलग था। अब एग्ज़ाम के दिन हम सब लोग चीट्स बना रहे, लेकिन भोली ये तो सबसे अलग था। वो अपनी एडियो के नीचे आंसर लिख के आया है, और वो भी सिलेबस के बाहर के। और मैंने उसको बोला अरे भाई तू कुछ काम का लिख के आया है, तो छाती के बटन खोल दिए, पूरा टेबल लिख के आया है इधर। मैंने बोला वाह भाई, अगर इतनी मेहनत तूने पढ़ाई में की होती ना तो तू पूरी स्कूल में नहीं पूरे इंडिया में तू फर्स्ट आता। और फिर लंच का टाइम आता है। अब लंच के टाइम आधे के लंच तो 1-2 पीरियड में ही खत्म हो जाते हैं, तीसरे पीरियड तक तो आधे के ही पहुंचते हैं। ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक बेंच से दूसरी बेंच, लंच का ट्रांसपोर्टेशन। अगर इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में आ गया ना तो इंडिया विल बी नेक्स्ट सुपर पावर, ये पक्की बात है। और फिर ऐसे ही स्कूल लाइफ जैसे ही आगे जाती है, एक दिन हुआ ऐसा कि मैं, भोली और हम सब दोस्त पीछे बैठकर बातें कर रहे थे। अभी सर आए, सर ने भोली को पकड़ लिया बातें करते हुए, सर ने उसे आगे बुलाया, और आगे आकर सर ने उससे एक मैथ्स की इक्वेशन पूछी, और उसने वहाँ लिख के आया है सार्वनामिक विशेषण। पूरा क्लास हंस रहा है, लेकिन मैं और मेरे दोस्त नहीं हंस रहे। इसलिए नहीं कि भोली हमारा दोस्त था, इसलिए क्योंकि हमें भी वो आंसर राइट ही लग रहा था, क्योंकि हमने भी कुछ पढ़ा नहीं था पूरे साल में, इसलिए। और फिर अब आता है स्कूल लाइफ में भोली का सबसे बड़ा इंसिडेंट। अब भोली एक दिन सो रहा था, तो सर ने उसे देख लिया, और आपने सर के हाथ में येलो कलर की स्केल तो देखी होगी, आपने कभी देखा है? वो स्केल से सर ने लाइन खींची हो, वो लाइन खींचने के लिए नहीं, लाइन पर लाने के लिए काम आती है। और फिर सर गए भोली के पास, सर ने भोली को उठाने की कोशिश की, तो भोली ने बोला अरे यार मम्मी सोने दो ना यार। तो सर ने एक जोर से उसको चमाट मारी, तो उसने बात घुमा दी। उसने बोला अरे पापा आप तो सोने दो यार। अब सर ने जैसे तैसे करके भोली को उठाया। अब भोली को उठाने के बाद सर ने एक जोर से उसको स्केल मारी,
लेकिन भोली ने इतना सा भी आवाज़ नहीं किया। वो पूरे पीरियड ऐसे के ऐसे सदमे में खड़ा रहा। अब जैसे ही पीरियड खत्म हुआ, मैं सोच रहा हूँ कि जो भोली पार्ले जी खाते खाते आधा बिस्किट गिरा देता है, उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। जैसे ही पीरियड खत्म हुआ, भोली गया सीधा बाथरूम में। फिर मुझे पता चला कि उसने मुँह से तो इमोशंस कंट्रोल कर लिए, लेकिन वहाँ से इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन आता है जब भी सर सबको पूछ रहे थे कि आपको बड़ा होकर क्या बनना है, तो सर ने सबसे पहले एक टॉपर को पूछा। तो टॉपर ने बोला कि आई वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल डांसर ऑन सोशल मीडिया। तो भोली की बारी आई, तो भोली ने सोचा मैं भी इंग्लिश में बोलता हूँ, मेरी भी कुछ इंप्रेशन बन जाएंगी। तो भोली बोलता है आई वांट टू सेल अ ग्राम विथ लेमन स्पाइसेस एंड टोमेटोज। तो मैंने बोला चनाचोर गरम बेचना है, डायरेक्ट क्यों नहीं बोलता भाई, ऐसे इंग्लिश में बोलने चला है। तो ऐसे ही चकाट के साथ और ऐसे इंसिडेंट के साथ स्कूल लाइफ का हमारा तो एंड हो गया। लेकिन हमने देखा अभी जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अपना पहला पड़ाव पार कर कर दूसरे पड़ाव में जा रहे हैं। तो फिर वो लोग को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और बस आखिरी में एक शायरी बोलकर मैं यहाँ पर मेरी बात खत्म करूँगा। बगीचे में फूल खेतों में धूल, बगीचे में फूल खेतों में धूल, कोरोना की वजह से इन बच्चों की खुशी हो गई थी गुल, कोरोना की वजह से इन बच्चों की खुशी हो गई थी गुल। वापिस आ गई ये खुशी क्योंकि बच्चों की लाइफ में आ गई है स्कूल, वापिस आ गई ये खुशी क्योंकि बच्चों की लाइफ में आ गई है स्कूल। गुरु बिना गुरुकुल है अधूरा, वैसे ही बच्चों बिना स्कूल है अधूरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसलिए स्कूल के दिन याद आ गए। आ गए? आ गए? ओके गुड। मेरे पास एक ही माइक है, आप सब बहुत सारे लोग हो, तो किसकी आवाज़ तेज होनी चाहिए? किसकी आवाज़ तेज होनी चाहिए? आप सबकी। Okay, so now this is the time for a surprise performance. See, there's a saying, a mediocre teacher tells, a good teacher explains, a superior teacher demonstrates, and a great teacher inspires. Is it so, Ami? Is it true that our teachers had prepared something for us? Yes, dear. For the lovely kids, our teachers has taken the efforts. They have choreographed a wonderful dance performance. Let's welcome our teachers with big cheers. प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो लोगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सर्वप्रथम वे होते हैं जो हमारे जीवन का आधार है, जिनकी छाया में हमारा जीवन संवरता है, जो निस्वार्थ भावना की मूर्त होते हैं, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जन्मदाता की, हमारे माता पिता की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। और दूसरे हैं वो जो समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं एवं देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शिक्षकों की, हमारे गुरुजनों की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सभी जानते हैं कि माता पिता और गुरु का स्थान बच्चों के जीवन में सर्वोपरि है। विद्यार्थी जीवन के सफल संतुलन हेतु जीवन रूपी तराजू के एक पलड़े में माता पिता हैं तो दूसरे में गुरु। इसीलिए प्रत्येक बालक के उज्जवल भविष्य हेतु गुरु और माता पिता का योगदान आवश्यक है।
हम एक ऐसे मकाम पर आ खड़े हैं जहां हमारे किड्स किंगडम के बच्चे अपनी ज़िंदगी के अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस अवसर पर हम टीचर्स सभी बच्चों को उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सब बच्चे अपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े और आसमान की ऊंचाइयों को छुए। जहाँ भी जाए अपने व्यक्तित्व से हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाए। इसी शुभकामनाओं के साथ हम टीचर्स बच्चों के लिए कुछ सादर करने जा रहे हैं। हेलो वाह एवरीवन गुड। कितने रोने लगे ये देख करके। बिकॉज पीछे हमारे पास में है एक दो टीचर जो एक्चुअली इमोशनल हो गए कि उनके बच्चे जा रहे हैं उनके पास से। वी आर हैविंग सम पेरेंट्स आल्सो बैक साइड। Fine. So with this performance, we have come to the end of the program now. I would like to call Jalpa Gajera ma'am on the stage to deliver the vote of thanks. Good evening to one and all present here. I, Jalpa Gajera, honored to propose vote of thanks on behalf of Eklavya Public School. I would like to thank our chief guest, Honorable Shri Vinu Amipara sir, Vice Chairman C.S. Chetan Shah sir, for sparing their valuable time for us and gracing the event. We all are grateful
for your presence. Further, I would like to express my deep sense of gratitude to our principal, Professor Anjali Giri ma'am, for her time-to-time support and supervision. Furthermore, Principal and Vice Principal of Eklavya Global School, Perry ma'am, our Chief Administrator, Mr. Digvijay Singh Waghela sir, our talented teachers and very supportive non-teaching staff who took great efforts to make this event a great success. We are highly grateful to our students and parents for supporting us and taking part in this event with great enthusiasm. Next, I would like to express my gratitude for our technical support team, service providers of lighting, sound, photography, all known and unknown hands that contributed to the success of our graduation ceremony. Thanks one and all, and I would like to take your leave with the feeling of happiness and gratitude. Thank you and have a wonderful evening ahead. Thank you. Yes, so as you have witnessed the achievement and everything, parents, okay, so as आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस थे and we think that हम भी ठीक ठाक ही होस्ट थे, right? Okay, thank you so much. So आप सबके पास एग्जिट पास होगा, उसमें रूम नंबर मेंशन है, आप सब अपने बच्चों को वहाँ से पिक कर लें एंड प्लीज़ कपल्स में से एक ही पेरेंट लेने जाएं जिससे कि हम क्राउड कंट्रोल कर पाएं. So, thank you so much everyone. It was a great evening. Now we would like to take your leave. Shubh Ratri, Shabba Khair, adios, ciao, hasta la vista, sayonara. This is me, Ami Chatwani. I, Pooja Jha,